Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group Kota. So student, today we will discuss about revision of chapter number 1 Python revision 2. Student, in this chapter we will discuss about token in Python. The smallest individual unit in a program is known as a token. जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग की उसको हम बोलेंगे token. Python has following tokens: keywords, identifiers name, literals, operators and punctuator. These are the tokens. Now student, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स. तो वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो सो स्टूडेंट, लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल एंड असाइन अ वैल्यू इन अ वेरिएबल. तो वेरिएबल रिप्रेजेंट लेबल्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग program run. In Python, to create a variable, just assign to its name the value of appropriate type. For example, to create a variable, namely student, to hold student names and variables age to hold student age, you just need to write somewhat similar to what is shown below. Let's say an example, student is equals to Amit. Here student is a variable name and Amit is a value. So student refers to the Amit. And age is equals to 16. Here age is a variable name and 16 is a value. So age is a refer to the 16. Now student, next we will discuss about multiple assignment. How to assign a multiple value in a single element or different value in a different variables. First, assigning same value to multiple variable. You can assign same value to multiple variable in a single statement. Let's see, a equals to b equals to c is equals to 10 means jo it will assign value 10 to all three variables a, b and c. Now second is assigning multiple values to multiple variables. You can even assign multiple value to multiple variable in single statement. So you write down x comma y comma z is equals to 10 comma 20 comma 30. Now it will assign the value order wise. तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो x में जाएगी, सेकंड वैल्यू y में और थर्ड वैल्यू z में जाएगी. Simple input and output. In Python, to get input from user interactively, you can use built-in function input. The function input is used in the following manner. So student, first of all, to write variable to hold the value is equals to input, prompt to be display. For example, name is equals to input, what is your name. So student, input function के थ्रू आप क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे यूजिंग कीबोर्ड. आपने लिखा मार्क्स इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स. तो स्टूडेंट, जो भी वैल्यूज आप कीबोर्ड से इनपुट कराते हैं वो सारी वैल्यूज स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या होती है, इनपुट होती है. यदि आपको उसको फ्लोट में या इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको जस्ट यहाँ पर लिखना होगा फ्लोट. तो वैल्यू जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोट में. और जस्ट आपने यहाँ इंट लिखा है तो जो वैल्यू होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में. नाउ स्टूडेंट, आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट. तो आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं. द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन इज अ वे टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो, तो यहाँ पर आपने क्या दिया है, स्ट्रिंग एज आउटपुट दिया है. एंड प्रिंट 17.5 एज अ नंबर, तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपने एज आउटपुट यहाँ पर शो किया है. तो प्रिंट माई नेम इज अमित, तो ये कैसा आउटपुट आ जाएगा, माई नेम इज अमित. नाउ सेकंड इज प्रिंट माई नेम इज अमित और सेपरेटर में आपने क्या लिख रखा है, डॉट साइन लगा रखें. तो जो आपका आउटपुट आएगा उस तरह से आएगा, माई 4 डॉट फिर नेम 4 डॉट इज 4 डॉट एंड अमित. तो इस तरह से आपका क्या जाएगा, ये आउटपुट शो होगा. नाउ राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब. अब आप एक प्रोग्राम यूज करेंगे जिसके अंदर आप क्या करेंगे, उसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे. जैसे यूजर ने 2 दिया तो उसका जो क्यूब है वो क्या गया, 8. तो नम इंट इनपुट एंटर ए नंबर, आप एक नंबर एंटर करें, वो किस में चला जाएगा, नम में. नम इंटू नम यानी कि 3 नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम और जो उसकी वैल्यू किस में आ गई, नम क्यूब में. नाउ प्रिंट द क्यूब ऑफ नम इज नम क्यूब. तो आउटपुट इज एंटर ए नंबर. तो यहाँ पर कितना आ गया, आपने एंटर किया 2, तो द क्यूब ऑफ 2 इज 8. तो जो क्यूब है 2 का वो कितना हो जाएगा, 8. नाउ डेटा टाइप्स. Data types are means to identify types of data and set of valid operations for it. Now different data type using in Python: numbers, strings, list, tuple and dictionary. Now important concept of mutable and immutable types. So immutable types, the immutable types are those that can never change their value in
place. For example, integer, floating point numbers, booleans, string and tuples. These are immutable types. तो ये जो होंगे अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे. Now next is mutable type. The mutable type are those whose value can be changed in place. Only 3 types of mutable in Python. These are list, dictionary and sets. तो ये 3 वैल्यूज है जो अपनी जो वैल्यू है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. इन्हें उनको बोलते हैं म्यूटेबल टाइप. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. Statement may be executed sequentially, selectively or iteratively. A conditional is a statement set which is executed on the basis of a condition. A loop is a statement set which is executed repeatedly until the end of condition is satisfied. हम बात कर रहे हैं if condition की. The if condition of Python comes in multiple forms. या तो plain if condition होगा, या if else conditionals होगी, या if else conditionals हैं. 3 टाइप के if हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो हम नाउ प्लेन इफ कंडीशन की बात करें तो इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, a इज मोर देन b. ठीक है. यहाँ पे आपको ये कॉलन लगाना है. मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि जब भी आप इफ या एल्स या लूप यूज करते हैं तो उसके लास्ट में हमेशा आपको कॉलन लगाना कंपलसरी है. तो यहाँ पर यदि आपने कॉलन नहीं लगाओगे तो जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एरर. तो आप कैसे लिखोगे, इफ a इज ग्रेटर देन b कॉलन प्रिंट a इज मोर देन b. नाउ इफ एल्स कंडीशन की बात करते हैं तो इफ a इज लेस देन 0 प्रिंट a इज 0 और पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंट a इज अ नेगेटिव नंबर. तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एल्स कंडीशन फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज लूपिंग स्टेटमेंट. पाइथन प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. हम बात करते हैं फॉर लूप की. द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम्स of any sequence such as a list or a string one by one. For element in 10, 15, 20, 25, print element plus 2 and equals to. तो आउटपुट क्या कर देगा, 10 में 2 ऐड किया 12, 15 में 2 ऐड किया 17, 20 में 2 ऐड किया 22 एंड 25 में 2 ऐड किया 27. तो ये एलिमेंट प्लस 2 क्या कर रहा है, जो एलिमेंट की वैल्यू उसमें 2 को ऐड कर रहा है. ओके स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट रेंज बेस्ड फॉर लूप. वी कैन स्पेसिफाई रेंज फंक्शन to represent a list, as in for val in range 318 print val in the above loop range 318 will first generate a list 345 and 17 with which for loop will work. So student, जो ये फर्स्ट वैल्यू है, जब भी हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं तो वो फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट वैल्यू होती है उससे एक कम, यानी कि ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा ये करेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि इससे एक कम वैल्यू को ये प्रिंट करेगा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाइल लूप. अ व्हाइल लूप इज कंडीशनल लूप दैट विल repeat the information within itself as long as conditional remains true. तो while loop जो लूप होता है वो जब तक रन होगा जब तक कि कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी. जब तक कंडीशन ट्रू होगी जब तक while loop एग्जीक्यूट होता रहेगा. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. नाउ syntax of while loop is, the general form of Python while loop is, first of all you write while keyword, then लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड फाइनली यू राइट लूप बॉडी. तो इस तरह से आप while लूप को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक वेरी वेल. थैंक यू.